Today we are going to learn the chapter number 8, that is the metallurgy. It is from paper 1. Okay, and before start this chapter, you know that the our earth was born near about 4.5 billion years ago. So from this duration till today, so many processes were takes place in the earth crust or in the core of the earth, and because of that processes in the earth crust or in the around the surrounding of the earth, and because of that different types of the processes, there is a formation of the ores, liquid and the gases in the core of the earth or in the surrounding of the earth. So during this so many substances were developed in the earth crust. So metallurgy, that this is the concept. It is related to the the substances that we found in the earth crust. Okay, so first of all we see the what exactly mean the metallurgy. So metallurgy, it stands for the metal, है ना. Okay, so how we can define? So metallurgy is a science and technology related to the extraction of the metal from their ore, है ना. मेटलर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे हम कि मेटलर्जी इट इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी regarding to the extraction of the metal from their ore and its purification for the use. It is called the metallurgy. So how we can define? Let's see the definition. Okay, definition of the metallurgy. तो कैसे डिफाइन करें हम मेटलर्जी को कि it is the or the science and technology, right, regarding to the extraction of metal, extraction of metal from its ores and their purification purification for use is called what? Metallurgy. This is called the metallurgy. Okay, तो बेटा metallurgy का definition मतलब how we can define means it is a science and technology which is regarding to the extraction of the metal. You know that in general जो metal, जैसे आप हम देखते हैं कि so many instrument were made up of the metal, राइट, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, दीज आर द मेटल. तो बेटा ये मेटल जैसे के वैसे हमें अर्थ पे या अर्थ के क्रस्ट पे या जो भी सोर्सेस है उन मेटल के जैसे के वैसे मतलब डायरेक्टली आयरन मिलेगा आपको या डायरेक्टली एल्यूमिनियम, ये ऐसे नहीं मिलते, है ना. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल्स और इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, राइट. तो वो कंपोजिशन में दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टन कंपोजिशन. ओके, तो ऐसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करके, है ना, वो पर्टिकुलर ओर से, बराबर. लेकिन ये ओर कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, गैंग्यू पार्टिकल्स क्या होता है, ये आने वाले जो भी हमारे क्लासेस होंगे उसमें हम स्टडी करेंगे, राइट. बट बिफोर दैट द exactly what exactly means the metallurgy means metallurgy is a process by which metal can be extracted profitably from its ore, है ना. profitably मतलब that metals are used for different purposes. you know that metal मतलब बहुत सारे purposes के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं. तो ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से फॉर द एंड उसको प्यूरिफाई करते हैं फॉर द यूज, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द मेटलर्जी. तो इस चैप्टर में बेटा हमें ये मेटलर्जी मतलब मेटल से रिलेटेड जो भी बात है वो हमें डिटेल में स्टडी करना है, राइट. सो बिफोर दैट इनिशियली जो कंपाउंड्स है या एलिमेंट्स है, elements are classified in accordance with the physical and chemical property of the what compounds or the elements. मतलब एलिमेंट को या जो भी सब्सटेंसेस थे उनको कैसे क्लासीफाई किया गया इनिशियली, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या किया गया था बेटा, क्लासीफाई. और बेसिकली है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, राइट, और मेटालाइट्स, ये जो तीन ग्रुप हैं इसमें बेटा एलिमेंट्स को क्या किया गया था, इनिशियली
क्लासिफाई किया गया था, बराबर है, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटालॉइड्स में। मतलब पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ रिलेटेड टू द सब्सटेंसेस और रिलेटेड टू द एलिमेंट, दैट इज द मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटालॉइड। शुरू में जनरली एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा, कुछ मेटल्स और नॉन मेटल और मेटालॉइड। अब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, उस चैप्टर जो भी हमारा लेसन है पेपर 1 का, हमने ऑलरेडी वो स्टडी किया है। तो उसमें आपने पढ़ा है कि जनरली 4 ब्लॉक्स है और 4 ब्लॉक्स में सभी ब्लॉक्स में जनरली मेटल प्रेजेंट है। या SPDF है, एस ब्लॉक में भी मेटल्स है, P ब्लॉक में भी मेटल्स है, D ब्लॉक में मेटल्स है, राइट। तो ये हर एक ब्लॉक में मेटल्स है, राइट। और जो लास्ट P ब्लॉक बोलते हैं वहाँ पे नॉन मेटल्स है, ओके। एवरीवेयर मेटल्स आर फाउंड, राइट। मेटालॉइड्स भी है, वो जिगजैग लाइन आपने देखी है ना, उस जिगजैग लाइन के एग्जैक्ट ऊपर जो एलिमेंट्स है वो मेटालॉइड्स है, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में भी मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड का एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन हमें दिया गया है, राइट। ये पहला क्लासिफिकेशन था रिलेटेड टू द एलिमेंट्स, राइट। तो एक्चुअली इस चैप्टर में हमें मेटल्स के बारे में या मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करना है। तो फॉर दैट वी मस्ट नो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल्स। सो नाउ लेट्स वी हैव डिस्कस द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले बेटा हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे मेटल और नॉन मेटल की, ओके। सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और आउट ऑफ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न द फिजिकल properties of what? Metal and non-metal, right? Metal and non-metal. तो मेटल और नॉन मेटल की हमें फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है, राइट। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे मेटल की, राइट। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, राइट। properties of metal, okay. So first of all, states, first physical property, it is related to the states, right। तो बेटा metals, as you know that generally जो basically states है, कंपाउंड की जो states है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है, ओके। तो जनरली मेटल जो है बेटा दे आर इन अ सॉलिड स्टेट। जनरली मेटल जो है वो कौन से स्टेट में रहते हैं? सॉलिड। एट रूम टेम्परेचर मेटल्स आर इन अ सॉलिड स्टेट। ओनली एक्सेप्शन, यहाँ पे एक एक्सेप्शन ऐसा है कि मर्क्यूरी, एक्सेप्शनल केस में कौन आता है बेटा? मर्क्यूरी एंड गैलियम, मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये दीज आर द मेटल्स बट दे आर इन अ लिक्विड स्टेट, राइट, बट दे आर इन अ लिक्विड स्टेट, अंडरस्टैंड। तो जनरली बेटा पहली प्रॉपर्टी हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं मेटल की कि सभी मेटल्स कैसे, कौन से स्टेट में है बेटा? सॉलिड स्टेट में। ऑल द मेटल्स आर इन अ सॉलिड स्टेट, ओनली एक्सेप्शन मर्क्यूरी एंड द गैलियम, दे आर द मेटल्स बट दे आर इन अ लिक्विड स्टेट। दिस इज द एक्सेप्शनल केस, मर्क्यूरी एंड द गैलियम। तो ये ऐसे दो मेटल्स है, वो मेटल है, बराबर है, लेकिन उनकी जो स्टेट्स है वो कौन सी है बेटा? लिक्विड स्टेट्स है। जनरली सभी मेटल्स कौन सी स्टेट में आते हैं? सॉलिड स्टेट में। ये हो, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। सेकंड, लश्यर, राइट। अब लश्यर यानी चमक, बराबर है। मेटल्स आर शाइन, यू सी दैट गोल्ड्स ऑर्नामेंट आपने देखे। अब ये जो बोर्ड देखो हमारा, ये बोर्ड, इसका जो आउटर एज है, राइट, जनरली ये आप देख सकते हो, ये जो बोर्ड है इट इज मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम, राइट। तो ये देखो शाइन होता है, मतलब इट हैज अ लश्यर, एंड एल्यूमिनियम इज अ मेटल, यू नो वेरी वेल, एल्यूमिनियम ये मेटल है। कोई भी मेटल आप देख लो, कॉपर देख लो, है ना, कॉपर के वेसल्स आपके घर में होंगे, राइट। ये जैसे मैंने ये एल्यूमिनियम की शीट, मतलब एल्यूमिनियम जो ये जो बोर्ड का जो आउटर एज है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम, इट शाइन, राइट। मतलब मेटल्स हैव अ लश्यर। मेटल को जनरली क्या रहता है बेटा? लश्यर्स रहता है, ओके। अब लश्यर के बारे में, जनरली लश्यर डिक्रीज भी होता है व्हेन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, इट मीन्स ऑक्सीजन और सम रिएक्टिव गैसेस। मतलब मेटल यदि एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, या कोई रिएक्टिव गैसेस के कांटेक्ट में आता है, तो उसका जो लश्यर है वो क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। कॉपर का लश्यर डिक्रीज होता है ना, कॉपर वेसल कुछ दिनों के बाद, है ना, उसका जो क्या बोलते हैं
जो लश्कर है मतलब उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, बराबर कि नहीं। फिर आपको है ना जैसे कॉपर का वेसल आप देखते हो कि उसका मतलब ग्रीनिश आता है, राइट, तो उसका जो लश्कर है बेटा लॉस होता है बिकॉज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सम गैसेस एंड दैट गैसेस रिएक्ट विद दैट कॉपर वेसल एंड इट्स शाइन्स बिकम डिसअपियर। ओके, तो इस तरह लश्कर डिक्रीज भी होता है व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन और इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर और द सम रिएक्टिव गैसेस। तो बेटा लश्कर, तो इन जनरल मेटल जो है बेटा वो क्या करते हैं, लश्कर शोज करते हैं, मतलब मेटल को क्या रहती है, चमक रहती है। गोल्ड देख सकते हो आप, जैसे मैंने एल्यूमिनियम का एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द मेटल हैव द लश्कर। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाट मेटल्स। थर्ड वन इज द डक्टिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा डक्टिलिटी, राइट। अब डक्टिलिटी देखो, मेटल ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली मेटल्स कैसे बेटा, डक्टाइल्स है ना। मेटल ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शोज करते हैं। अब डक्टिलिटी मतलब क्या होता है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, दे कैन बी यस ड्रॉन इनटू द थिन वायर, राइट। मीन्स क्या होता है इसका मीनिंग, थिन वायर। मेटल को हम है ना थिन वायर में क्या कर सकते हैं बेटा, उसको मतलब मेटल का कन्वर्शन थिन वायर में हम कर सकते हैं, राइट। मतलब आप देखो, आप देखते होंगे कि जो मेटल्स है ना, यू नो दैट अब इलेक्ट्रिसिटी में देखो आउटर कवरिंग तो वो PVC का रहता है, लेकिन अंदर जो कॉपर का वायर है या एल्यूमिनियम का वायर है वो बहुत ही थिन रहता है ना। Why we get such a thin wire of the copper or thin wire of the iron or thin wire of the aluminum? Because of the property shows by the metal that the ductility। मतलब ductility मतलब मेटल को हम है ना बारीक से ऐसे नहीं, क्या थिन वायर में क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं ना। सबसे मोस्ट डक्टाइल जैसे गोल्ड, आप देख सकते हो कि गोल्ड की चेन आप देखते हो कितना बहुत ही स्मॉल वो जो है ना वायर जैसा, राइट, थिन वायर रहता है, राइट। तो ये बिकॉज ऑफ दैट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट हम कंसिडर करते तो गोल्ड है। नियर अबाउट 1 ग्राम गोल्ड यदि हम उसको थिन वायर में ड्रॉन करते तो नियर अबाउट 2 किलोमीटर तक हम उससे वायर बना सकते। 1 ग्राम गोल्ड, आप 1 ग्राम मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा होके भी उससे हम कितने किलोमीटर तक क्या बोलते हैं उससे वायर बना सकते थिन, मतलब 2 किलो नियर अबाउट 2 किलोमीटर। सो दैट्स वाई गोल्ड इज अ है ना, गोल्ड ये मतलब सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी शोज करने वाला मेटल से, राइट। मतलब डक्टिलिटी मतलब वायर कैन बी ड्रॉन इनटू द है ना थिन वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पर्टिकुलर मेटल। देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज द मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, अब बेटा ये मैलिएबिलिटी मतलब व्हेन वी हैमर द मेटल है ना, जब हम मेटल को क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, उसको हिट करके हैमरिंग करते हैं, तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन शीट्स। उससे हम क्या बनाते हैं, थिन शीट्स। पत्रे देखते हो आप, है कि नहीं, पत्रे जो मेटल्स की थिन शीट्स आपको दिखती है, तो वो थिन शीट्स हम बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द मैलिएबिलिटी। मतलब आफ्टर हैमरिंग है ना, व्हेन यू हैमर्ड द मेटल, सो हैमर्ड द मेटल है ना, बाय हैमरिंग वी कैन ड्रॉन द मेटल इनटू द थिन शीट्स है ना, थिन शीट्स हम बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी समझ में आया, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल पजेस करता है और बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी मेटल्स कैन बी ड्रॉन एज अ थिन शीट्स। आप आयरन की शीट्स देखते हो है ना, मोस्ट ऑफ द रूफ्स ऑफ द हाउसेस और रूफ्स ऑफ द वेरियस गोडाउन्स आर मेड अप ऑफ द सच आयरन शीट्स, right, and that can be prepared by hammering the particular metal or by increasing the temperature by heating it and by hammering it. So this property is known as the malleability। मतलब metals क्या possess करते हैं बेटा, malleability, और malleability से ही thin sheets हम क्या कर सकते हैं, metal से बना सकते हैं। Okay, then fifth property is the hardness, right, hardness। ऑल मेटल्स आर हार्ड है ना, मेटल्स क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। मतलब जनरली आप जितने भी मेटल्स देखते हो वो हार्ड, सभी मेटल्स क्या है बेटा, दे शो द हार्डनेस, हार्ड है। इसमें एक्सेप्शन है कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, यानी फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स है, जब मेटल्स है, सोडियम आता है, लिथियम, पोटेशियम, ये एक्सेप्शनल केसेस है इसमें हार्डनेस में। तो ये सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम, लिथियम,
right? These elements are present in the first group in the periodic table. So these are the soft metal. तो ये exception हो गया. All other metals are hard. Only exception is there sodium, potassium and the what? Lithium. Sodium, potassium और lithium. ये first group में रहने वाले एलिमेंट्स है या मेटल्स है, ये बेटा सॉफ्ट है. दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. इनको हम नाइफ्स की मदद से कट कर सकते हैं, मतलब ये सॉफ्ट है. अदरवाइज ऑल द मेटल्स आर हार्ड. ओनली एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम एंड द लिथियम, राइट. ये एक्सेप्शनल केसेस है. दीज मेटल्स आर द सॉफ्ट मेटल्स. दे कैन बी कट्स इजीली with the help of knife as they are the soft. वो soft है, right. बाकी सभी मेटल हार्डनेस प्रॉपर्टी क्या करते हैं बेटा, शोज करते हैं. अंडरस्टैंड. उसके बाद मेटल्स आर द यस गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टेंस और कंडक्टर, राइट. जनरली मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है बेटा, गुड कंडक्टर. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट. उसके बाद 7th पॉइंट है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, राइट. तो बेटा मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है बेटा. तो हम बात कर रहे थे कि मेटल्स जनरली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, हाई रहता है. फॉर एग्जांपल टंगस्टन. कहाँ पे यूज़ करते हैं हम टंगस्टन, जो बल्ब है बेटा, है ना, बल्ब का जो फिलामेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ द टंगस्टन, राइट. टंगस्टन को हम वुल्फ्रम बोलते हैं, राइट. तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का रहता है नियर अबाउट 3422 डिग्री सेल्सियस, राइट. इतना हाई मेल्टिंग. इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंगस्टन को बल्ब के फिलामेंट में क्यों यूज़ किया जाता है, राइट. बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई रहता है. मतलब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी का इमिशन होने के बाद भी ये ब्रेक नहीं होता है, राइट. तो इसलिए जनरली जो फिलामेंट है बल्ब का ये टंगस्टन से बनाया जाता है बिकॉज ऑफ द इट्स हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो सभी मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है बेटा, हाई रहता है, राइट. तो जैसे कि टंगस्टन का मैंने एग्जांपल आपको दिया है 3422 डिग्री सेल्सियस. ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है. लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम है, मर्क्यूरी है, या ऐसी जो मेटल्स है, राइट, पोटेशियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या रहता है बेटा, लो रहता है ना. ये एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, सोडियम, मर्क्यूरी, राइट. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रहता है. अदरवाइज सभी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है. सबसे ज़्यादा ये किसका बोला, टंगस्टन का है ना. दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन, राइट. सबसे ज़्यादा इट इज़ 3422 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये हो गया बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. ओके, उसके बाद लास्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, दैट इज द सोनोरिटी. सोनोरिटी, राइट. आप देखते हो है ना, स्कूल में बेल रहती है ना, या कोई भी मेटल आप उसको स्ट्राइक करो, इट प्रोड्यूसेस अ साउंड. सोनोरस मतलब, सोनोरिटी मतलब क्या होता है कि मेटल को आप किसी दूसरे मेटल से क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, बराबर है. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोनोरस या सोनोरिटी. अंडरस्टैंड. सो व्हाइल स्ट्राइकिंग द मेटल इट प्रोड्यूसेस अ साउंड. दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज द सोनोरस और सोनोरिटी, राइट. सो ये जनरली बेसिकली बेटा क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मेटल्स की स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहले हमने स्टेट के बारे में पढ़ा है कि मेटल जनरली सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. इसमें ये मर्क्यूरी और गैलियम है, ये मेटल्स है, लेकिन इनकी स्टेट कैसी है बेटा, कैसी है, लिक्विड है. ओके, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लश्यर. मेटल को लश्यर रहता है, राइट, चमक रहती है मेटल को. उसके बाद डक्टिलिटी, और ये जो लश्यर है बेटा ये डिक्रीज होता है व्हेन इट कम्स इन कंटिन्यूसली कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, कम्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर और द सम रिएक्टिव गैसेस. वो लश्यर कम भी होते जाता है कुछ मेटल से, कुछ मेटल के बारे में. ओके, उसके बाद डक्टिलिटी मतलब मेटल को हम थीन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने गोल्ड का एग्जाम्पल दिया है. 1 ग्राम गोल्ड से हम नियर अबाउट है ना 2 किलोमीटर इतना बारीक वायर हम क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं. तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डक्टिलिटी. उसके बाद मैलिएबिलिटी है ना, मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स. मेटल को हम हैमर्ड करके, उसको हिट करके, हैमर्ड करके उसका कन्वर्शन थिन शीट्स में
कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं, मतलब मेटल्स आर मैलिएबल। उसके बाद हार्डनेस, सभी मेटल्स क्या है बेटा हार्डनेस है, ओनली एक्सेप्शन फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप दैट इज सोडियम, पोटेशियम एंड द लिथियम, दे आर द सॉफ्ट मेटल, दे आर कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ओके, उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सभी मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या रहते हैं बेटा गुड कंडक्टर रहते हैं, राइट मतलब ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई रहता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, टंगस्टन सबसे ज़्यादा उसका है ना मेल्टिंग पॉइंट है नियर अबाउट 3422 डिग्री सेल्सियस, इसलिए उसको बल्ब के फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। और सोनोरिटी, ऑन स्ट्राइकिंग द मेटल्स, on striking the metals metal can produce the sound, that property is called as the sonority or the sonorous। तो ये बेटा physical properties of the metals। same क्वेश्चन आ सकता है कि what are the physical properties of the non metal। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल है ना, ये डिसाइड करना बहुत आसान है, जो प्रॉपर्टीज मेटल पजेस करता है वो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल पजेस नहीं करता है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। चलो सबसे पहले नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल की हमने क्या स्टेट्स है ना, सबसे पहले हमने क्या किया था, लिया था मेटल का स्टेट्स। ओके, तो जनरली मेटल की सॉलिड स्टेट थी, तो ये नॉन मेटल भी जनरली दे आ रहा सॉलिड है ना, नॉन मेटल भी जनरली सॉलिड स्टेट में रहते हैं। सम सॉलिड एंड गैसेस, राइट, गैसेस स्टेट। ओके, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड एंड द गैसेस स्टेट। ओके, मतलब नॉन मेटल भी सॉलिड स्टेट में रहते हैं और गैसेस स्टेट में भी। सम ऑफ द नॉन मेटल्स आर एट सॉलिड स्टेट एंड सम आर द गैसेस स्टेट। इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है ब्रोमीन। एक्सेप्शन क्या है बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन ए नॉन मेटल है बट इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, लेकिन वो कौन से स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में। क्यों एक्सेप्शन है ब्रोमीन, क्योंकि जनरली सभी नॉन मेटल की स्टेट कौन सी रहती है बेटा, सॉलिड या तो गैस, लेकिन ब्रोमीन ऐसा है कि इट इज अ नॉन मेटल, इवन इट इज अ नॉन मेटल बट इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, दैट्स व्हाई इट बिकम एक्सेप्शनल। उसके बाद लश्यर, सेकंड पॉइंट जो है ना बेटा लश्यर है ना, मेटल्स जनरली सॉरी नॉन मेटल को लश्यर नहीं रहता है, मतलब मेटल्स को दे डू नॉट हैव अ लश्यर। यहाँ पे एक्सेप्शन है आयोडीन का है ना, आयोडीन, राइट। तो बेटा एक्सेप्शन केस में आयोडीन है कि आयोडीन को क्या रहता है, लश्यर रहता है। सभी नॉन मेटल आर नॉन लश्यरस, मतलब सभी नॉन मेटल को लश्यर नहीं है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है जैसे कि आयोडीन, राइट। तो ये बेटा लश्यर शोज करता है। ओके, तीसरा पॉइंट मेटल्स डक्टिलिटी है ना, दे डू नॉट डक्टाइल, मेटल्स डक्टिलिटी भी नहीं। उसके बाद मैलिएबिलिटी भी पजेस नहीं करते, नॉन मेटल मैलिएबिलिटी है ना, ये सभी मतलब ऑलरेडी मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की है वो नॉन मेटल की नहीं है, राइट मतलब डक्टिलिटी मेटल शोज करता है तो नॉन मेटल डजंट शो द डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी भी नॉन मेटल शोज नहीं करता है। उसके बाद हार्डनेस है ना, ये हार्डनेस जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल मैक्सिमम नॉन मेटल गैसेस स्टेट में। ओके, तो ये मतलब हार्डनेस या सॉफ्टनेस हम वहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स बेटा सॉलिड स्टेट्स में रहते हैं, राइट। तो जनरली नॉन मेटल ये हार्ड नहीं रहती है, बराबर की हार्डनेस, दे डिडंट शो द हार्डनेस। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हार्डनेस के बारे में भी, नॉन मेटल में एक्सेप्शन है, वो है बेटा डायमंड। डायमंड का एक्सेप्शन है, डायमंड, डायमंड इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप है और ये हार्ड है। यू नो दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा हार्ड होने वाला नेचुरल सब्सटेंस वो क्या है बेटा, डायमंड है। अब डायमंड मैंने क्या बोला है कि इट इज़ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और कार्बन जनरली नॉन मेटल्स में आता है, बराबर है कि नहीं। तो जनरली सभी नॉन मेटल ये कैसे बेटा हार्ड नहीं है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन कौन सा है बेटा, डायमंड का, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, वो क्या है बेटा, वो क्या है, हार्ड है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। कहाँ पे यूज करते हैं हम डायमंड, वेयर वी कैन यूज द डायमंड। प्रीवियस ग्रेड में आपने पढ़ा होगा डायमंड के, है ना, डायमंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले जो भी प्रीवियस ग्रेड है 9th 8th है उसमें आपने पढ़ा है कि डायमंड, तो जनरली हम आप देखते हो कि डायमंड ग्लास कटिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ये उसके बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इट शोज द हार्डनेस, है ना, उस प्रॉपर्टी के वजह से हम डायमंड का यूज जनरली ग्लास कटिंग के लिए करते। जनरली सभी नॉन मेटल्स ये कैसे है बेटा,
हार्ड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन केस में ये डायमंड। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये ऑल द मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सभी नॉन मेटल कैसे बेटा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है बेटा, बैड कंडक्टर है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ओनली एक्सेप्शन ग्राफाइट, बराबर है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है ग्राफाइट, जो कि किसका एलोट्रोप है, कार्बन का, राइट। तो ग्राफाइट ये कार्बन का एलोट्रोप है, इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सभी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर मतलब क्या होता है, दे डजंट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो लेकिन एक्सेप्शनल केस कौन सी है इसमें, ग्राफाइट, जो कि किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है, और इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक एक्सेप्शनल केस होगी। एक्सेप्शनल केस आप ध्यान में रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत कम रहता है। उसके बाद सोनोरिटी, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, राइट। तो ये बेटा दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स, ओके। अब नॉन मेटल जनरली ब्रिटल रहते हैं, और एक आप लिख लो ब्रिटल, है ना। इफ यू अप्लाई अ लिटिल प्रेशर टू द नॉन मेटल इट कैन ब्रेक्स इजीली, है ना। जैसे आप कोल देख सकते हो, कोल विच इज मेड अप ऑफ द, उसमें कार्बन रहता है। कोल को आप थोड़ा सा भी मतलब प्रेशर दोगे तो इट कैन बी, राइट, इट कैन बी ब्रेक्स इजीली, मतलब ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर द ब्रिटल्स, राइट। सो दीज आर द व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कंपेरेटिवली हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल स्टडी किए, तो इससे हमें पता चलता है कि जनरली मेटल्स किसे बोलेंगे, कि ये प्रॉपर्टी जितने भी एलिमेंट शोज करेंगे ऑल दे आर द मेटल्स, और ये जो प्रॉपर्टी जितने एलिमेंट शोज करेंगे दे आर द नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। इसके बाद हम मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी करने वाले हैं, राइट। एक्चुअली इस चैप्टर में हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन देखना है, और साथ में हम नॉन मेटल की भी स्टडी करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये या तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, राइट, इस तरह से पूछा जा सकता है, या इंडिविजुअली ये जितने भी एक्सेप्शनल केसेस है ना, तो बेटा एक्सेप्शनल केसेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि डायमंड, है ना, डायमंड जनरली सभी नॉन मेटल कैसे कि दे आर द ऑल द नॉन मेटल्स दिस डजंट शो द हार्डनेस, बट डायमंड का एक्सेप्शनल है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रोमीन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ग्राफाइट क्यू कंडक्टर है ना, राइट। तो ये क्वेश्चन, इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूछा जा सकते हैं, ओके बेटा। सो दैट इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल। थैंक यू।